ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी का 544वां वार्षिक उर्स दरगाह सूफी साहब में संपन्न हुआ। आप सूफी साहब की छठी पुश्त में थे। आपका मजार सूफी साहब के पायते स्थित है। आपने ही गरीब नवाज का गुंबद बनवाया था और सूफी साहब का बुलंद दरवाजा तामीर करवाया था। आप बहुत ही आबिद व जाहिद और पाए के बुजुर्ग थे। आपके जमाने में आप जैसा बुजुर्ग कोई और नहीं था। आपकी औलाद आज भी नागौर शरीफ में मौजूद है। उनके पोते पीर मोहम्मद इज्जतुल्लाह फारूकी चिश्ती सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा सूफी कमालुद्दीन चिश्ती मोहल्ला पीरजादा झुंझुनू ने ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी की मजार पर और सूफी हमीदुद्दीन साहब की मजार पर चादर पेश की और उर्स की महफिल की सदारत की। मंगलवार की रात को सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में हजरत ख्वाजा मखदूम नागौरी का उर्स मनाया गया, जिसमें चादर और फूल पेश किए गए और सलातो सलाम पढ़ा गया, फातिहा ख्वानी हुई और आखिर में मुल्क में अमनो चैन की दुआ मांगी गई, जिसमें मौजूद रहे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी के पोते मोहम्मद फरोग हुसैन फारूकी नागौर, काजी मेराज उस्मानी, अहमद हुसैन फारूकी, शेख मोहम्मद फारूकी, इमरान रजा नागौरी, हाफिज सुलेमान, हाफिज निसार अहमद, आबिद हुसैन, मोहम्मद जफर फारूकी ने संदल व फूल पेश कर फातिहा खानी शिजरा खानी की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और अमन चैन की दुआएं की। इस मौके पर मोइनुल हक, इनामुल हक, नासिर फारूकी, इकरामुद्दीन फारूकी, इरफान, रिजवान, करीमुद्दीन शेख, सिकंदर शेख ने गिलाफ चादर पेश कर प्रोग्राम में उपस्थित रहे।
आ जाओ यहाँ तुम्हारी जगह एकदम सही खड़ा है। मैं अपना भी जा रहा हूँ। Ilan bumong yan pa? Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, barakatullah alayka, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, बरकतुल्लाह अलैका। बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महबूबे खुदा हो, अब तो बेजो दवा हो, हाँ जवाब इसका अता हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, बरकतुल्लाह अलैका। अकबर शैदा तुम्हारा
پھر رہا ہے مارا مارا زبزا تم کو پکارا اس کی اب سن لو خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ برکات اللہ علیکہ السلام اے اللہ کے پیارے رسول یہ سلام عزیزانہ وہ سب کا قبول تو سخی تیرا سخی دربار ہے اب کرم کر دو تو بیڑا پار ہے ہو چکی تعظیم بس کی جو قبول بیٹھ جاؤ پڑھ کے مومن اب حضرت پر درود خالق رحم فرمائے کریم یا غفور یا رحیم یا حکیم یا علیم یا الہی یا محمد یا علی شیر خدا یا حسن بصری و عبد الواحد شاہ خدا شاہ فضیل ابن عیاض شاہ ابراہیم فروز حق کے خواجہ عبدال احمد کو محمد نیک خواجہ ابو یوسف ملک و خواجہ موجود اقوات خواجہ حاجی دنیا حمید الدین صوفی مرشدی شاہ فرید چاک فرہ اولیاء متقی شاہ عزیز الدین کبیر الدین کا تمہو بہترین سن میری فریاد خالق رحم فرمائے کریم یا غفور یا رحیم یا حکیم یا علیم خواجہ مخدوم حسین خواجہ معروف پیر خواجہ ابوالفتح عبد القادر روشن ضمیر خواجہ عبد المجید ابوالفتح ثانی امیر شیخ خالد شیخ خیر الدین کے رب القدیر سن میری فریاد خالق رحم فرمائے کریم یا غفور یا رحیم یا حکیم یا علیم حضرت شیخ شعال التقیہ شیخنا خواجہ سراج الدین امان الاولیاء شاہ نصیر الدین امیر الدین کا رب الولا شیخ قادر بخش چشتی کے خدا سن میری فریاد خالق رحم فرمائے کریم یا غفور یا رحیم یا حکیم یا علیم شیخنا حاجی کریم الدین صوفی اور سراج الدین ثانی چشتی پیشوا شیخ منظور الحق چشتی میرے رہنما ان کے صدقے میں دین و دنیا میں ہو بھلا عرض کرتا ہے فروغ دین و یقول حتا سن میری فریاد خالق رحم فرمائے کریم یا غفور یا رحیم یا حکیم یا علیم یا خواجہ معین است من مستعین خود تو کافی است میرا یا معین حق معین یا معین حق معین جو کوئی چاہے ہمیشہ جنت یا معین حق معین واسطے پیران شجر چشتیہ کے واسطے حاضرین جلسہ کے دل کی ہو پوری آرزو حاضرین اصول مدعا کے واسطے یا الہی بحج و قربت و قربت معاد الماسیہ خواجہ رکن الدین محمد فاروق چشتیہ قدر فروغ فاروق نبی و آل الامجاد یا الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ روشنائی بغرداب بالافتاد کشتی ضعیفان و شکشتارد پشتی بحق خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین حسن چشتی مولوی حرقت نشد مولا رومتا غلام شمش تبریج نشد قالب غدر مرد الشوق پیش مرد کامل پامال شو انشاءاللہ تعالی یا غریب نواز دستغیری کی جائے چار ساز بندگی مقبول ہو بندہ نواز ایک نظر اپنے غدا پہ کیجیے دامن مقصود کو بھر دیجیے یا غریب نواز استغفر ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ ہر کے خواد ہم نشینی با خدا وہ نشین نظر حضور اولیاء اولیاء را ہست قدرت ازلا دیر دستا باز کردہ حنزلہ کما قال المولى تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا آج یہ بتائیے آج یہ جو عرس کے بارے میں بیان کرو تھوڑا آج کس کا عرس ہے کیا ہے آج حضور سلطان الطارقین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین
ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ताला के आज उर्स था। सभी तमाम ने हाजिरी पेश किए, कुरान की तिलावत, खानी और फातह खानी पेश की है, और तमाम ने चादर पेश की, गुलपोशी की, और तमाम ने अपनी अपनी हाजिरियाँ पेश की, आर्ज़ा पेश किए, अपनी तमन्ना आर्ज़ुएँ पेश की, दुआएँ पेश की। आज मकसूद दिन था ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ताला के उर्स का। दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मुरादें की बारगाह में पेश करते हैं, और ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी तमाम की मुरादों पर आते हैं, तमाम की दुआएं सुनते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, तमाम हाजिरियाँ पूरी होती हैं। वो यहाँ पे आए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो क्या सूफी साहब की औलाद रही हमेशा, और यहीं पर उन्होंने टाइम दे रखा है और यहाँ पर तबलीग दीन भी की है बहुत अपने वक्त के अंदर। फिर यहाँ से कई खित्तों में तबलीग करते हुए एक अरसे दराज तक गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह अक़दस में रहे, और वहाँ पर इन्होंने इबादत गुजारी की, गरीब नवाज की हाज़िरी दी, वहाँ पर खिदमत गुजारी की। और आज जो गुम्बद शरीफ गरीब नवाज का हम देख रहे हैं, ये ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ताला का बनाया हुआ है। आपने एक अरसे दराज वहाँ खिदमत गुजारी की, बहुत बड़े फैज़ आपने पाया, और जहाँ भी गए आपने लोग सब मुस्तफ़ीद हुए, बहुत लोगों ने फ़ायदा हासिल किया आपसे। पूरी ज़िंदगी आपने दीन की तबलीग के अंदर गुजारी, लोगों को राह रास्त पर लेकर आए, राह से भटके हुए थे, दीन से भटके हुए थे, उनको राह पर कायम किया, सिरात मुस्तकीम पर कायम किया। इस तरफ आप नज़र उठा कर देख लेते, भटके हुए लोग आपकी राह हिदायत पर आ जाते, ये आपकी खासियत रही। इस्लाम आज ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 544वां उर्स बड़ी अक़ीदत के और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्तान आलिया हज़रत सुल्तान तारिकीन सूफी अज़ीज़ुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर आपका मज़ार है, वहाँ पे गुलपोशी की गई, फातिहा ख़वानी की गई, चादर शरीफ पेश की गई, और सब ज़ाहिरों ने बहुत ही एहतराम के साथ हिस्सा लिया और फैज़ बरक़ात हासिल किया। ये उर्स शरीफ पीर मंज़िल साहब के मकान से पीरजादा महल नागौर शरीफ से हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाता है। वैसे तो दादा बुजुर्ग हमारे जो दादा परदादा हैं उस टाइम से मनाया जाता है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला जब से ये तकरीब कर रहे हैं, बराबर मुसलसल चल रही है, और इंशाअल्लाह आगे भी जो हमारे बच्चे वगैरह हैं वो चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। औलाद वाले हाजिर होकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मनाते हैं। और जैसा कि हमारे ज़फ़र भाई ने, हमारे ताया जी खालिद साहब ने आपको बताया होगा, बड़े एक बिलखुसूस वाक़या है जो सिर्फ मैं शॉर्ट में मुख्तसर में आपके लिए बयान करूँगा कि उससे आप अगर नसीहत हासिल करें कि हज़रत ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौर रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी तसलसल का कुछ इस तरह वाक़या है कि आपने इल्म जो हासिल किया, इल्म हासिल करने के लिए आप अपने गुजरात में अपने एक मामू जान है शेख कबीर गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में हाजिर होकर के आपने अपना ज़िंदगी का जो इल्म व फ़नून है वो सब हासिल किया। इल्म फ़न और इल्म हदीस की सब जो जानकारी है वो आपने अपने खालू से ली। अब इसमें एक बिलखुसूस एक मसला और बात यहाँ आती है कि जब आप घर से रवाना हुए थे तो आपके वालिदैन ने कुछ खतूत दिए थे कि बेटा ये जाके अपने खालू को दे देना, तो खालू समझ जाएंगे कि मेरा भतीजा ही है, ये मेरा रिश्तेदार ही है, तो तेरी ख़ास ख्याल किया जाएगा। बट यहाँ पर एक जो पॉइंट है जो बंदा आज नोटिस करना चाहिए वो ये है कि आप पहुँचे, आपने इल्म फ़नून अपने खालू के पास रहकर 10 साल हासिल किया, इल्म हदीस और कुरान शरीफ के मुतालिक और दीन के मुतालिक जो इल्म हासिल किया कम से कम उसमें 10 साल लगाए। बट आपने कभी भी उन ख़तों को ज़ाहिर नहीं किया, अपने खालू को बताया नहीं, और जब आपने सनद ली, आप फारिग हुए, तब अपने खालू की हाजिरी में पेश होकर कहा कि देखो खालू जान ये मैं आपका रिश्तेदार लगता हूँ। तो आपने आँख नम होकर कहा बेटा तू पहले भी तो बता सकता था। तो आपका बड़ा ही निराला अंदाज में जवाब था कि अगर मैं आपको पहले बता देता तो जिस तरीके से आप मुझे सिखाते फिर नहीं सिखाते, मैं लाड प्यार में सीख नहीं पाता। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आप चल के आते। अब यहाँ आप माइंड में एक बात रखिएगा कि आपने 10 साल इल्म हासिल किया, कुरान सीखा, कुरान पढ़ना सीखा। आज अल्लाह
اہل خاندان کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن سیکھیں سکھائیں. بٹ آپ کو ایک بالخصوص مشہور واقعہ ہے، اور یہ میں اپنی منہ زبانی بیان نہیں کر رہا، باقاعدہ مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں، آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ آپ جیسے ہی فارغ ہو کر آ رہے تھے اپنے وطن کو واپس، تو ایک جگہ آپ نے قیام کیا ایک عورت کے پاس، جو پرانے ریتی رواج کے حساب سے کھانے کا ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو آٹا دے دیا جاتا تھا، وہ آٹے سے روٹی بنا کر کے ہوا کرتی تھی. تو جو بھی یہ مشتمل معاملات ہوا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پیش آئے، اور آپ نے کہا کہ چلو وقت ہے، میں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، میری عبادت بھی ہو جائے گی اور میرا کھانا بھی تیار ہو جائے گا. تو یہاں ایک بڑا ہی مشہور جملہ اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہوا کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ایک جاہل عورت